Hello students, we have already discussed in chemistry about redox reaction. Redox reaction means reduction and oxidation reaction, in which oxidation means addition of oxygen while reduction means addition of hydrogen. Or in case of hydrogen, oxidation means removal of hydrogen. Oxidation, addition of oxygen or removal of hydrogen, and reduction means addition of hydrogen or removal of oxygen. So we have discussed this, but how this redox reactions affects in our everyday life, or we can say that natural redox reaction. Okay, नेचुरल रेडॉक्स रिएक्शन जो कि हम डेली लाइफ में भी हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस देखते हैं जिनमें नेचुरली रेडॉक्स रिएक्शन हो पाती है या हो जाती है, जो हमारे लिए कई बार हेल्पफुल भी है और कई बार हार्मफुल भी. ठीक है, लाइक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज removed. Most important which is in our surrounding is corrosion. Corrosion, or in case of metals we call it as corrosion. Corrosion मतलब सड़ना किसी चीज़ का या metals का corrode हो जाना. In case of iron we call it as rusting. Rusting of iron. Okay, so most of the metal corrode due to the oxidation and they deteriorate gradually and can completely destroyed due to this oxidation. Okay, means corrosion is a slow destruction or eating up of metal. corrosion को हम easy language में कह सकते हैं कि metal का पूरी तरह ख़त्म हो जाना, eating up of metal. okay, मतलब धीरे धीरे नष्ट हो जाना या डिस्ट्रक्ट हो जाना. okay, so it is a destruction or eating up of metal. और किस वजह से हुआ? ड्यू टू ऑक्सीडेशन. ओके, ऑक्सीडेशन होने की वजह से कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और सल्फर डाइऑक्साइड इन मेटल के साथ रिएक्ट हो जाते हैं और उस मेटल को पूरी तरह कोरोड कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन. और हम कोरोजन के केस में अगर हम आयरन का कोरोजन देखें तो हम उसे जनरल लैंग्वेज में रस्टिंग कह देते हैं या जंग लगना. ठीक है, तो रस्ट या जंग लगना भी कब होता है? जब आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ या मॉइस्ट एयर के साथ जब रिएक्ट करता है तब वो क्या बना देता है? आयरन का ऑक्साइड बना देता है. सो आयरन ऑक्साइड फॉर्म होने लग जाता है. मतलब आयरन ने मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन था उसमें रिएक्ट होकर उसने क्या बना दिया है? रस्ट. आयरन ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड रस्ट. ओके, so we can understand this with the help of reaction also, that Fe plus O2 plus H2O. आयरन आर्टिकल्स पर अगर ऑक्सीजन और वाटर दोनों का रिएक्शन हो तो ये एक तरह का ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, Fe2O3 डॉट XH2O. यहाँ हम एक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें जोड़ पाते हैं. इट इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड. आयरन विच इज़ ऑल्सो सॉलिड, ऑक्सीजन विच इज़ गैस, वाटर विच इज़ इन लिक्विड स्टेट. ओके, दे रिएक्ट simultaneously with iron and form iron oxide. Okay, just we balance this. 4Fe plus thrice O2 gives rise to 2x of H2O. मतलब 2 के मल्टीपल्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, and twice Fe2O3 plus dot XH2. This Fe2O3 dot XH2O or Fe2O3 is a formula for rust, hydrated iron oxide. It is hydrated iron oxide. Okay, so corrosion means the eating up of metal or destruction of metal due to oxygen or moisture containing air. And corrosion of iron is also called rusting. Iron can be rust or rusted with the help of oxygen and water present in air and form Fe2O3 dot XH2O. Means this is a rust. Also in common we call it as rust.
Clear? Then third one, if we talk about the corrosion of another metal like copper, when comes in contact with atmospheric gases like carbon dioxide, oxygen or water molecules, then they also form or corrode a layer or form a layer around it, CuCO3 dot CuOH twice. So CO3 is the basic green colored layer on the copper metal. कॉपर मेटल के ऊपर आपने देखा तांबा जब थोड़ा सा हरा हरा सा हो जाता है, जो ज़्यादातर हमारे पूजा वाले बर्तन होते हैं वो कॉपर के होते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं, एक लेयर से जमने के बाद उनके ऊपर ग्रीनिश कलर का कार्बोनेट बनने लग जाता है. ग्रीन कलर कॉपर कार्बोनेट इज फॉर्म. इट इज द कोरोजन ऑफ कॉपर. ओके. सिल्वर ऑल्सो गेट कोरोड. चांदी का काला पड़ना, हम बोलते हैं चांदी काली पड़ गई है ना. तो चांदी का काला पड़ना वो हवा में जो H2S प्रेजेंट है उसकी वजह से हो रहा है. Ag2S जैसा सब्सटेंस बन जाता है और H2 गैस इवॉल्व होने लग जाती है. सो दिस Ag2S इज नथिंग बट इट इज अ ब्लैक कलर्ड सिल्वर सल्फाइड. ओके, दिस इज द ब्लैक कलर्ड सिल्वर सल्फाइड. व्हाट इज इट? सिल्वर सल्फाइड. सिल्वर व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक H2S जैसी गैसेस के कांटेक्ट में आते से ही ये Ag2S बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है. इट इज व्हाट? सिल्वर सल्फाइड. एंड दिस इज द ब्लैक कलर्ड सॉलिड विच इज द कोरोजन ऑफ सिल्वर. ओके. देन थर्ड वन इज एल्यूमिनियम मेटल का ऑक्सीडेशन या कोरोजन होना. तो एल्यूमिनियम इज ऑलवेज form a layer of aluminum oxide over it. Aluminum metal reacts with oxygen to form inert layer of Al2O3. एल्यूमिनियम जो है वो Al2O3 की प्रीवियस लेयर ही बना लेता है. इन दिस केस द कोरोजन इज बेनिफिशियल एज दिस इनर्ट लेयर इज Al2O3 which protects the aluminum metal from further corrosion. मीन्स इसीलिए हम फूड आइटम्स को एल्यूमिनियम के कवर में रैप करते हैं या एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं उसके केस में, क्योंकि ये प्रीवियसली Al2O3 की लेयर बना लेता है जो हमारे लिए एक तरह से बेनिफिशियल है और इसका फर्दर कोरोजन नहीं हो पाता. फर्दर कोरोजन इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये कोरोड नहीं हो पाती बाद में और इसलिए एक तरह से ये हमारी फूड आइटम के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती और हम इसको एल्यूमिनियम फॉइल को फूड आइटम्स को रैप करने के लिए भी यूज़ करते हैं. ठीक है. सो व्हाई द क्वेश्चन में भी अराइज लाइक दिस, व्हाई एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड इन बेकिंग द फूड मटेरियल? बिकॉज इट फॉर्म्स Al2O3 previous layer on the aluminum metal which is not so much harmful and cannot corrode further. और आगे इसका कोरोजन नहीं हो पाता फूड आइटम्स के साथ मिलकर. ठीक है. सो अब मेन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. हम कैसे प्रिवेंट करें कोरोजन को. ठीक है. हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग. क्लियर? दिस प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, फॉर दिस प्रिवेंशन हमें बहुत से जनरल तरीके तो पता है कि जैसे अगर आयरन की चेयर है, लोहे की कुर्सी है, उसको बारिश में या बाहर हवा में न छोड़े, खुले में न छोड़े, जिससे कि उसके ऊपर पानी और हवा, ऑक्सीजन और वाटर का कांटेक्ट में आकर उसके ऊपर रस्ट बना दे. बोलते हैं बारिश में लोहे की चीज़ों को बाहर नहीं रखें ताकि उसके ऊपर रस्टिंग ना हो पाए. ठीक है. मीन्स हमको उनको दूर रखना है. उसके साथ ही हम ऑयलिंग और ग्रीसिंग के बारे में जानते हैं. ऑयलिंग. ठीक है. सो ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग also prevent the iron articles from rusting by oiling, greasing. Clear? Then by electroplating. Electroplating is also a method. एक सुपीरियर मेटल को आयरन के आर्टिकल्स पर कोट करना, ये है एक तरह की कोटिंग. ठीक है. कोटिंग ऑफ अनदर मेटल ऑन द आयरन आर्टिकल्स. इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से एक क्रोमियम लेयर, आप जनरली बाथरूम फिटिंग्स देखते हैं या डोर फिटिंग्स देखते हैं
उनमें एक थोड़ा सा शाइनी सरफेस सा दिखाई देता है. इट इज़ व्हाट? कोटिंग ऑफ निक्रोम और क्रोमियम. क्रोमियम कोटिंग ओवर द आयरन आर्टिकल. आयरन के ऊपर क्या कर दिया है? क्रोमियम का कोटिंग कर दिया है. इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑल्सो द आयरन आर्टिकल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग. उनसे बचाया जा सकता है. नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन. ओके, तो गैल्वेनाइजेशन मीन्स आयरन आर्टिकल्स को जिंक की कोटिंग के थ्रू प्रिवेंट करना. जिंक कोटिंग. ओके, आयरन आर्टिकल्स are prevented from rusting by coating of zinc layer, which is more electropositive than iron. So this coating of zinc is called galvanization. Clear? Next is tinning. Tinning means prevention of iron articles by coating with tin. सो गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक का कोटिंग करना. इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब दूसरी कोई भी मेटल का कोटिंग कर लेना. देन टीनिंग मीन्स कोटिंग ऑफ टीन. क्लियर? टीन की एक लेयर का कोटिंग कर देना, इट इज कॉल्ड टीनिंग. देन अलॉइंग. अलॉइंग एज यू ऑलरेडी नो, अलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ मेटल्स. ओके, तो टू प्रिवेंट रस्टिंग we have to mix different metals with iron. So mixture of metal is called alloying. So to prevent iron rusting, iron की को जंग लगने से बचाने के लिए हमें उसमें दूसरी metals को भी mix कर देना चाहिए. जो बेस्ट एग्जांपल आयरन की रस्टिंग से बचने के लिए है ना, alloying. ओके, देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है यहाँ से कोरोजन. क्लियर हो गया? मेटल का कोरोजन मतलब उसका डिटेरियोरेशन, धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन, या फिर उसका ईटिंग अप, मेटल का ईटिंग अप. और उससे बचने के लिए, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हमने ये उसके पार्ट्स देखे हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी. रेंसिडिटी मीन्स जैसे हम मेटल के बारे में कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो गया, उसी तरह फूड आइटम में प्रेजेंट फैट और ऑयल जो होता है, इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और उसकी वजह से स्मेल या टेस्ट में चेंज आ जाता है. उसके बैड स्मेल एंड टेस्ट कैन क्रिएट बैड स्मेल एज वेल एज टेस्ट. ओके, सो दिस इज रेंसिडिटी विच कैन बी कॉज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल इन द फूड आइटम्स. फूड आइटम्स में जो प्रेजेंट ऑयल या फैट है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और उसकी वजह से जो फूड आइटम से उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो गया, और वही क्या कहला रहा है? रेंसिडिटी. सो हम कह सकते हैं द नेचुरल ऑक्सीडेशन, इट इज ऑल्सो नेचुरली कॉजिंग ऑक्सीडेशन. नेचुरल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स विच आर प्रेजेंट इन फूड आइटम्स गिविंग बैड स्मेल एंड टेस्ट. सो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड. अब इसको भी हम देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ कई बार जो नमकीन लेकर आते हैं, अगर बाहर छोड़ दिया जाए थोड़े दिन तक, ध्यान नहीं दिया जाए, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. उसमें बोलते हैं हम कि तेल चढ़ गया है. तो तेल चढ़ गया मीन्स क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया उस ऑयल या फैट मटेरियल का, और उसकी वजह से स्मेल या टेस्ट में चेंज आ गया है. ठीक है? इन केस ऑफ चिप्स ऑल्सो दे बिकम रेंसिड. चिप्स को अगर हम हवा में खुला छोड़ दें या खाते खाते रख दें तो क्या होगा? पैकेट के अंदर के जो चिप्स हैं वो खुला होने की वजह से रेंसिड हो जाएंगे, और खाने में उसका टेस्ट खराब हो जाएगा. सो इट कैन बी प्रिवेंटेड. इसका प्रिवेंशन देख लेते हैं हम कि प्रिवेंट कैसे किया जाए. हाउ कैन बी प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ फूड आइटम्स. सो फर्स्टली वी हैव टू रेफ्रिजरेट इट. हमको इसमें रेफ्रिजरेशन कर देना चाहिए. जो भी फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनमें ऑयली चीज़ें होती हैं, वो क्या करें? हम रेफ्रिजरेशन कर दें, और स्टोरिंग फूड मटेरियल एट लो टेम्परेचर एंड ड्राई प्लेसेस, सूखी जगह पर और लो टेम्परेचर पर उसे रख दें. सेकंड, हम उसको कैसे बचा सकते हैं? अब कीपिंग अवे फ्रॉम सनलाइट. ओके, कीपिंग अवे फ्रॉम सनलाइट, उसको धूप वाली जगह से दूर रखें. ओके, बहुत ज़्यादा धूप में ना रखें, क्योंकि बहुत जल्दी उसमें रेंसिडिटी हो सकती है धूप में. ठीक है? नेक्स्ट हम देख सकते हैं प्रिजर्वेटिव ऐड करके, बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स. प्रिजर्वेटिव ऐड करके भी हम इन फूड आइटम्स को बचा सकते हैं माइक्रोब से या टॉक्सिक प्रोड्यूस करने से. ठीक है? नेक्स्ट वन इज
एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें यूज़ कर लें, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स डालेंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और हमारे फूड आइटम्स फिर से बच जाएंगे, ठीक है, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंड इन केस ऑफ चिप्स, जैसे कि अभी हमने चिप्स की बात की कि हम चिप्स को ख़राब होने से बचाने के लिए उसे क्या करते हैं, बहुत एयर टाइट पैकेट्स में उन्हें पैक किया जाता है और उन्हें नाइट्रोजन गैस से फ्लश किया जाता है। तो यूज़ ऑफ नाइट्रोजन गैस के साथ उसको फ्लशिंग कर देते हैं, मतलब नाइट्रोजन गैस फील करके और फिर पैकेट्स बनाए जाते हैं ताकि उन्हें रेंसिडिटी से बचाया जा सके। तो बहुत से ऐसे फूड आइटम होते हैं जिनको फ्लशिंग करके और नाइट्रोजन गैस के साथ उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है। लास्ट वन इज क्रिएशन ऑफ वैक्यूम टाइट कंटेनर में हमें इन्हें रखना है। ओके, वैक्यूम टाइट कंटेनर में अगर हम फूड आइटम्स को रखेंगे तब भी हम उन्हें रेंसिडिटी से बचा पाएंगे। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज कोरोजन एंड रस्टिंग as well as rancidity. Corrosion and rancidity. The corrosion in case of metals, while rancidity means in case of food items, oxidation of food items, fat and oil. Okay, so just revise this topic and go through the chapter completely. Thank you. Have a nice day.